अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं गाँव में लगने वाली एक पंचायत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। वालेकुम सलाम। जय साहब, क्या मसला है? ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ये क्या मसला है, बताएं ना। ਉਹ ਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਡਵਾਤੀ ਜੇ। ਉਹ ਨੱਕ ਕਿਹੜੀ ਵਢਾਤੀ? ਮੈਂ ਲੱਕ ਚ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਖਾ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਗਈ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ। क्या हो गया? ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ, ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਕੱਦ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਓਟਾ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਜੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਇਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਏਡੀ ਤੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ। ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਰੋਣਾ ਤੂੰ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੱਝ ਧਰੂ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਆ। ਨਿਰਾ ਧਰੂ ਕੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮਰੀ ਮੱਝ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟ ਫੜਾਏਗੀ ਵੱਡਾ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਧੂਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਤੇ ਮਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੁਰਨਾ। ਓਏ ਅੱਛੂ ਪੁੱਤ, ਹੁੱਜਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਮਿੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਆ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਪਕੌੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और डालता नहीं है नारदा? ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਪਕੌੜੇ। अच्छा, ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ 6 ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਰਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਚਾਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਦਕੇ 6 ਪਿੰਡ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਸੁੱਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕੜਾਈ 'ਚ। ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। हाँ जाहिर है। ਰਾਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਮ ਤੇਲ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਗਰਮ ਤੇਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਹਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਾਏ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਏ ਕਰੇ? ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦਾ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚ ਜੋ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਏਡੀ ਕੁਕੜਾਈ ਚ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। और वैसे भी इस पे एतराज करने वाली क्या बात है? रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं राणा ये साहब। लाल है, लाल अल्लाह की रहमत नाल लाल करके अल्लाह की रहमत नाल लाल ही खाधी है हमेशा राणा साहब ने। जुनैद साहब, बात ये है कि आपने सिर्फ कारोबार ही नहीं सोचना, आपने लोगों को सहूलत भी देनी है। जाहिर है। पूरे पिंड च इन्होंने पूछो कढ़दा हरे को पकौड़े। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ आइडियाज ऑफ ਆਈਡੀਆ बिजनेस। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਪਕੌੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜੇ। अच्छा, ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मशहूर यही है इलाके में राणे के ਹਾਂ पकौड़े। ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, पकौड़ों में भी एंड डाला है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਉੱਤੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ ਪਵਾਇਆ। हाँ वाजी वाह। ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਆਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ। अच्छा चलो, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी गाहक ने आगे कहा हो कि ये समोसा भी रहने दो, पकौड़ा भी रहने दो, आधा किलो एंड दे दो मुझे?
ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਚੀ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਦੋ ਕੁ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ इंज करन दे। नहीं, एक बात तो मुझे साफ पता चल रही है कि राणा साहब के हाथ में अल्लाह ने जायका दिया हुआ है। ਜਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ नहीं ਕੋਲੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੜਾਈ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸਮੋਸਾ ਬੇਸਣ ਆਪ ਕਢਵਾਇਆ ਹੱਥੀ ਛੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਬੇਸਣ ਕਢਵਾਇਆ अच्छा ਹਾਂਜੀ 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 ਖਾਲਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ सब कुछ अपना ਓ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਆਪ ਕੜਛਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੜਛਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨੇਦ ਪੁੱਤ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸਾ ਬਲਦਾ ਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਪਾਏ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ कंप्लीट ऑर्गेनिक पकौड़े जबरदस्त। अच्छा, इस कारोबार का एक फायदा ये भी हुआ, पैसे तो आए सो आए, लोग राणा कहना शुरू हो गए होंगे आपके दमाग ਨਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਏ ਰੌਲੇ ਪਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਉਹ ਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਉਹ ਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜੀ ਏ ਉੱਠਣ ਡਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਦੇਣਾ ਪਕੌੜੇ क्यों? ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਐਡਾ ਤੂੰ ਦਊਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਦਾਊਦ ਆ ਭਾਈਆ ਰਾਤੀ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਕਰਾਓ ਓਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਘਿਓ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾਨ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ यार मेरी बात सुने, इस मामले का ये पहलू भी तो ज़हन में रखे ना कि ये पकौड़े या समोसे रोजादारों को बेच रहे हैं, एक तरह से सवाब में भी हिस्सादार बन रहा है ना। ਜਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਇਹ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਈਆਂ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ सही ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਇਹ ਅਨਾ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ ਜੇ ਝੂਠੀ ਅਨਾ सीधी बात है जैसा वो कुछ चोरी या डकैती तो नहीं कर रहा ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ सही सही ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਫੁੱਫੂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਟੋਏ 'ਚ ਮਾਮਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਚਾਚਾ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਵੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਉਰਲਾ ਏ। ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਜੀ ਹਾਂ ਪਾਛੂ ਜੀ ਉਹ ਮਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇਂ ਘਰਾਣਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ और नोट करें कि उसने अशरफ भी नहीं कहा, अच्छू कहा। ਬਸ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ अच्छा, जैसे आप लोगों की लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन मेरे ज़हन में आ रहा है
कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जो सिर्फ हम रमजान में या ईदैन के मौके पे करते हैं और अच्छे वाले लोग करते हैं, खाते पीते लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यही कारोबार मतलब अच्छे वाले खाते पीते लोग जो है वो ईद पे चूड़ियों के स्टॉल लगा लेते हैं और ये समोसे पकौड़े या इस तरह की चीजें रोजों में लगा लेते हैं। तो आम दिनों में क्या कबाहत है ये कारोबार करने में? कोई भी कारोबार, किसी भी कारोबार। बस जी 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 मैं सिर्फ यही दसना चाहना सारे पिंड वालियां नूं ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ कि कौन की है और यार मेहनत करो, इसमें कौन सी बुराई है। बिल्कुल सर, हमारी सोसाइटी को अल्टीमेटली इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आना होगा। हाँ जी, आगे ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ तो यहाँ पे भी सफाइयां सुथराइयां भी कर लेंदे हो ते अपने मुल्क च की मौत पई। आपकी खुशनसीबी है कि आपके दामाद राणा साहब ने इस हवाले से एक मिसाल कायम की है। हाँ जी, मैं ਬਾਊ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं बहुत पढ़िया लिखिया आदमी है पुत्र, पढ़िया लिखिया बंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੜਾਈ ਟੱਪ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਇਆ। अच्छा सिर्फ ये बता दें कि पकौड़े निकालते हुए भी चश्मा लगाए रखते हैं राणा साहब? ਇਹਨੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਂਦਾ ਰਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਰਾਣਾ ਐਨਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਰਾਣਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਭੰਗ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमें 250 अरब रुपया इस माशरे में चैरिटी की मद में तकसीम होता हुआ कहीं लगा हुआ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि कई साल से हम यही सुन रहे हैं कि 26% से ज्यादा लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें तो गुर्बत में कमी दूर दूर तक नजर नहीं आती। बिल्कुल। भाईजान, हम कमोबेश हर रमज़ानुल मुबारक में एक मौजू का अहाता करने की कोशिश करते हैं कि ये हम ज़कात या खैरात करते हैं या सदका देते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल ये तरद्दुद नहीं करते कि हकदार तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ गवारा की जाए, थोड़ी सी जहमत गवारा कर ली जाए। आम तौर पर होता ये है कि खातून खाना के ज़िम्मा ये ज़िम्मेदारी होती है और वो जो घर में आने वाली रवायती हर साल या 6 महीने बाद 4 माह बाद वो कोई 10-15 ख़वातीन होती हैं जी, उनको दे दिया जाता है या ज़कात की रकम जो भी देना, सदका ज़कात जो भी हम देना चाहते हैं, या आम तौर पे हम ये जो पेशावर भिखारी होते हैं, गाड़ी में पैसे रखे होते हैं, तो आम तौर पर ज़कात तो नहीं देते लेकिन हम उन लोगों को सदका या खैरात ज़रूर दे देते हैं। अब एक अंदाज़ा ये बता रहा है कि वतन अजीज़ में इस वक्त 7 अरब रुपए की बैंक ज़कात काटते हैं। 7 अरब रुपए की बैंक ज़कात काटते हैं। एक और अंदाज़ा ये है कि 20 अरब रुपए जो है वो फितराने की मद में दिए जाते हैं। ठीक है, और अब जो मैं फिगर बताने लगा हूँ वो मैं कम से कम 3 से तकसीम कर रहा हूँ इसको। कुछ अरसा पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि हम चैरिटी की फंड में 600 अरब रुपया देते हैं। मैं 600 अरब रुपए की फिगर इस वक्त नहीं मान रहा, मैं उसको सिर्फ ये सारा जितना भी हम पैसा देते हैं चैरिटी की ज़द में, उसमें ज़कात भी शामिल है, उसमें खैरात भी शामिल है, उसमें सदका भी शामिल है, सब कुछ शामिल करके मैं इसको कहता हूँ ये 250 अरब रुपए बनते हैं। जी, क्या हमें 250 अरब रुपया इस माशरे में चैरिटी की मद में तकसीम होता हुआ कहीं लगा हुआ नजर आता है? क्यों? इसलिए कि कई साल से हम यही सुन रहे हैं कि 26% से ज्यादा लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें तो गुर्बत में कमी दूर दूर तक नजर नहीं आती। बिल्कुल सही।
वही हम सुनते हैं, आज से कई साल पहले भी यही सुन रहे थे, अब भी यही सुनते हैं कि 1100 लोग जो हैं गुर्बत के हाथों तंग आके खुदकुशियां कर रहे हैं। फिर वजह क्या है? वजह सादा सी ये है कि हम लोग जो हैं वो ज़कात देते हुए, खैरात देते हुए, सदका देते हुए अपनी चेयर से, अपने बेड से उठने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। मुनासिब नहीं समझते। अल्लाह का वास्ता सोचने की कोशिश करें, इतनी बड़ी रकम, ये जो 250 अरब रुपया, मैं तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लो यार, कि अगर एक 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान को आप जी। 3000 रुपया महाना राशन की मद में दे देते हैं जी। तो ये सालाना कितने बनते हैं? 36,000 रुपए। 36,000, हाँ जी। 36,000 रुपया अगर आप एक खानदान को दे रहे हो, 250 अरब रुपया दे रहे हो, तो ये कमो बेश 70 लाख खानदान बनता है। 70 लाख खानदान को आप घर बैठ के रोटी खिला रहे हो, 4 अफराद पर मुश्तमिल 70 लाख खानदान है। हाँ तो जी। अगर इसको अफराद पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये गालबन 2 करोड़ 80 लाख, हाँ जी, 2 करोड़ 80 लाख अफराद बनते हैं जिनको आप सिर्फ ज़कात से खाना खिला सकते हाँ हैं। जी। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करेंगे कि जी ये तो कोई हल नहीं है कि घर बैठे उन लोगों को आप माजूर बना दें और घर बैठे उनको खाना खिलाते रहें सारी ज़िंदगी के लिए। फाबे बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई बंदोबस्त करना हाँ चाहिए। जी, सही। 50,000 रुपया अगर एक खानदान को आप दे दें कर्ज़े हसना के तौर पे ही सही, तो पता है कितने खानदानों को आप कारोबार के लिए 50,000 रुपया दे सकते हैं? कितने से? 50 लाख खानदानों। यानी 50 लाख खानदान हर साल खत्ते गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। सही। और उनमें से चले मैं कहता हूँ सारे के सारे वापस आपके पैसे नहीं लौटा सकते। वैसे तो ये जो फाउंडेशन है डॉक्टर साकिब की अखुवत, इसने तो साबित किया है ना कि 100% जो है वो रिटर्न की शरह है, सारे के सारे पैसे वो वापस लेते हैं। चले मैं कहता हूँ जी कि 70% पैसे वापस नहीं करते, 30% भी वापस कर देते हैं, तो बात कहाँ की कहाँ जा पड़ती। यानी आप 70-80 लाख लगभग खानदानों को हर साल खत्ते गुर्बत की मनहूस लाइन से खींच के वापस ला सकते हैं। असल में वो जो उलमा हजरात कहते हैं कि ये जो ज़कात है या खैरात है या फितराना है या सदका है, हाँ जी। ये अल्लाह ताला के साथ कारोबार है। हाँ बिल्कुल सर। तो वो यही कहते हैं ना जी, उसको इसी तरह पोर्ट्रे करते हैं कि अगर आप अपने कारोबार के लिए भज नस करते हैं, मार्केटों में फिरते हैं, बाजार जाते हैं, मंडी जाते हैं, या माल लेने के लिए जाते हैं, माल उतरवाने जाते हैं, माल बेचने जाते हैं, हाँ जी। तो उसके लिए आप दुनियावी कारोबार के लिए अगर भज नस करते हैं तो फिर अल्लाह के साथ कारोबार भी भज नस कर के करें, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये सीधी सीधी इसका बात नजर आती है कि नहीं सही बंदों तक पहुंच रही तो नहीं ना गुर्बत। हमें ज़कात के हवाले से, सदकात के हवाले से, खैरात के हवाले से बहुत सारी आयात का पता है, हमें इल्म है, हम एक दूसरे को बताते भी हैं, उलमा कराम से सुनते भी हैं। हाँ जी। एक हदीस है जिस पर आम तौर पर हम ध्यान नहीं देते और वो हदीस सही है। वो हदीस है क्या? वो हदीस ये है कि जितना ज़कात लेने वाला मुस्तहिक होगा उतना ही आपको ज़कात देने का सवाब मिलेगा। ये हदीस सही है, जाहिर है, ये हदीस सही है कि जितना कोई हकदार होगा उतना ही आपको सवाब ज्यादा होगा, सीधी बात है। अब आप अगर बैठे बिठाए दे देते और आप तरद्दुद नहीं करते, आप जहमत गवारा नहीं करते पता करने की, बैठे बिठाए ऑनलाइन अगर आप चैरिटीज करना शुरू कर देते हैं, खुद नहीं देखते, तो फिर नतीजा यही निकलेगा, जीरो। देखो जी, बात ये है कि अगर आप किसी सही भूखे आदमी को पैसे पहुंचा देते हैं या खुराक पहुंचा देते हैं पैसों की सूरत में जी, तो उसका जब पेट भरेगा तो वो दिल से दुआएं देगा जी। तो अगर आप एक प्रोफेशनल मांगने वाले को या जो रूटीन में ये काम कर रहे हैं उनको जब आप पैसे या ज़कात अपनी खैरात पहुंचाएंगे तो उसने क्या दुआ देनी है या क्या उसके दिल को ठंडक पहुंचानी या अल्लाह पाक के हजूर, जाहिर है वो बिल्कुल ठीक बात है, जितना सही पहुंचेगी आपकी खैरात ज़कात उतना ही ज्यादा। इसमें आम जवाब पता है क्या पेश करते हैं जब कोई कहता है यार आपने फलां एनजीओ को दे दी है, वो तो फ्रॉड है,
وہ تو یہ ہے, وہ تو اس طرح کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو ہم آگے سے جواب یہ دیتے ہیں او یار ہمیں کیا, ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے دی ہے نا, وہ اس کا ایمان اور اس کا ایمان. ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے کہ وہ بے ایمانی کا مرتکب ہو رہا ہے جو آپ کی زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں کر رہا, لیکن آپ بھی کہیں نہ کہیں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ ٹھیک بندے تک نہیں پہنچانے کے, مطلب آپ زحمت ہی گوارا نہیں کر رہے, تو آپ دوسرے کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ اور اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ تمام این جی اوز کا آڈٹ کیا جائے, اور جو این جی او بھی آڈٹ کے فنڈ کلیکشن حکومت کو چاہیے, اگر اس کے مشکوک اکاؤنٹس ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ خود تھرڈ پارٹی سے اس کا آڈٹ کروائے, اس کے فائنینشیل آڈٹس چیک کرے, اس کے سارے اعداد و شمار دیکھے جائیں کہ اس نے اتنی زکوٰۃ لی ہے یہاں کا یہاں ہے اور یہاں پر خرچ کیے. اس میں کیا مشکل ہے؟ بات ہے جو بڑی پاپولر وڈی این جی اوز ہیں جن کے لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو دیتے بھی ہیں پیسے, زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں, ان کا ساتھ ساتھ یقیناً آڈٹ ہونا چاہیے. بے شک جتنے مرضی اچھا وہ کام کر رہے ہیں, جب چیک رہے گا تو پھر لائمن کام بیلنس میں رہے گا. بالکل صحیح. اور اگر آپ چیک ہی نہ رکھیں گے تو پھر جو مرضی ہوتا جائے, پھر تو باندر دے ہاتھ ماچس آئی ہوئی. کیوں جی اپنا گوری صاحب تم کیوں اچھے ہو یار, ایک سیریس بات ہو رہی ہے, تھیلے ہمیں میاخ نہ کیا کرو. اچھا میں اپنے ان اعداد و شمار کی ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے 250 ارب روپے بتائے ہیں یہ صرف کیش بتایا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مخیر حضرات جو ہے ہاسپٹلز میں, یتیم خانوں میں جو کھانا بھیجتے ہیں, ادویات خرید کر بھیجتے ہیں ہاسپٹلز میں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ مخیر حضرات اس میں کام کر رہے ہیں, مگر بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی بھج نس کر کے, تردد کر کے صحیح ٹھیک ٹھکانے کے اوپر اپنا پیسہ پہنچانا چاہیے. اچھا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے کوٹ کی جیب میں سے پھول نکل آیا ہے, یہ خود نکلا ہے یا آپ پانی ڈالتے رہے ہیں جیب میں اس لیے نکلا ہے؟ صبح دوپہر شام پانی لگاتا ہوں, مالی تک ہم پانی دے پر جیب چھپاوے. عزیزی آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا, میرے جوڑے میں گیندے کا پھول میں تمہیں کیسی دکھوں. بالکل ٹھیک بات ہے, وہ جوڑے میں تو پھول نظر نہیں نہ آتا, اسی لیے اس نے یہاں گایا نا کہ ہارے لیتے یہاں پیچھے تو کو پوٹ کے لائے گئے تو کون یہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پہاڑ چڑھ تو لیا آپ نے, تو پھر اترائی؟ جنید صاحب اترائی میں ہی تو بچت ہوئی ہے پاکستان. میں نے ڈرائیور سے کہا اترائی شروع ہو گئی ہے, انجن بند کر اور گیئر سے نکال دے گاڑی. بند گاڑی سیدھا چین میں گھس گئے. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. شیخ صاحب اگر آپ کی طبع نازک پر گراں نہ گزرے, جنید صاحب سیدھی بات کریں, مجھے یہ گرامر میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں. میری ساری زندگی انہی کاموں میں گزری ہے. چلیں جے تو غصہ نہ چڑھے تو گل پوچھ لوں. جی جی ضرور پوچھیں, ایک کیا 100 پوچھیں. میں جمہوری آدمی ہوں, میں جنید صاحب کوئی عامر کی گود میں پل کے جوان نہیں ہوا. میں اس لیے سنتا بھی ہوں اور سناتا بھی کھری کھری ہوں. اچھا شیخ صاحب, آج ایک افطاری گورنر ہاؤس میں ہو چکی ہے اور ایک کل آپ ریلوے ملازمین کو دیں گے افطاری, تو یہ سرکاری خرچ پر افطاریاں دینے پر تو پابندی عائد نہیں ہے؟ میں سارا سمجھ گیا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کیوں صبح سے مجھے فون کر رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, میں کو بچہ نہیں ہوں, میں کو روٹی کو چوچی نہیں کہتا. مجھے بھی پتہ ہے کہ سرکاری خزانے کو اس وقت ہوا میں اڑانا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. 70 سال سے ان لوگوں نے معیشت کو بیچاری کو بے ہوش کر دیا, دمویا کر دیا. تو میں جنید صاحب ان چیزوں کا خیال رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ جو افطار پارٹی کی ہے یہ ساری میں نے خود کی ہے. پکوڑے میں نے خود نکالے ہیں. سموسے والی کڑائی پہ چوری سرور صاحب کھڑے تھے کیونکہ گورنر ہاؤس میں تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فکر نہ کر شیخ,
अद्धा काम तेनू आंदा ते अद्धा मैनू आंदा। शेख साहब पकौड़े खुद निकाले थे या मुख्तलिफ रेलवे प्लेटफॉर्मों से बचे हुए पकौड़े इकट्ठे किए थे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं सुन सकते थे, प्रोग्राम तक बाहर बह जाओ। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जवाब दूंगा और आपके सामने दूंगा। जुनैद साहब, मसला ये है कि अगर प्लेटफॉर्म से भी इकट्ठे किए हैं गौरी साहब, तो अब वो प्लेटफॉर्म नहीं रहे। अब शेख रशीद के पास है वजारत रेलवे। अल्लाह के फजल से हर प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन पकौड़े निकलते हैं, और बाकायदा मैंने कागजों में लिखा है अनारदाना अच्छा और पालक काट के जरूर डाल दें। रिटर्न ऑर्डर है मेरे। मैं चंद स्टेशनों से शिकायतें मिली हैं कि अनारदाना तो डाल रहे हैं मगर पालक का नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो पालक के हवाले से मैंने फिर खींचा इनको। देखें, बात ये है कि ये जो अफ्तारी की है हमने, जुनैद साहब, मैं समझता हूं कि वो की पंजाबी च कहते ने जे तुसी इन्ने जोगे हो तो फिर आओ खाड़े च। तो मैं समझता हूं कि मैं इतने जोगा था तो मैंने ये अफ्तारी की है, और अपने खुद की है सारी। आपको बताया, पकौड़े खुद निकाले हैं, समोसे हमने खुद बनाए हैं, चटनी तक हमने खुद बनाई। शेख साहब टेंट भी खुद ही लाए सन तुसी? देखें गौरी साहब, हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें अफ्तारी पे पाबंदी है, टेंटों पे पाबंदी नहीं है। और खास तौर पे अगर किला ठोक के तो टेंट बांधना है, उसके हवाले से पाबंदी है। हमने पूरी अफ्तारी में किले का इस्तेमाल नहीं किया। और आपको ये भी बताता चलूं कि गवर्नर हाउस में अफ्तारी रखने का मकसद ही ये था कि वहां पे दरख्त बहुत ज्यादा हैं, इसलिए किले का इस्तेमाल नहीं हमने किया, डायरेक्ट रस्से दरख्तों से बांधे। अच्छा शेख साहब, पकौड़े भी आपने निकाले खुद, समोसे भी आपने खुद बनाए? जी अल्लाह के फजल। बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका। जी हाँ, जी हाँ। इसको मोहल्ले में कहते हैं कि बड़ा तेरा अद्धे समोसे का मुंह है, ये सही गल है या नहीं? देखें, ये तो किसी से पूछने वाली बात ही नहीं है। आप इसके भाई का और इसका मुंह जोड़ के देखें, अगर पूरा समोसा बनता है तो फिर ये आधा समोसा है। शेख साहब ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं तुसी कल्ले कल्ले इफ्तारी कराती जी? पहली बात तो ये है कि कल्ले कल्ले नहीं कराई, वहां पे सैकड़ों हमारे कारकुन थे। और दूसरी बात ये है कि आपको इसलिए नहीं बताया कि सिर्फ 5 बोरियां मैदा मंगवाया था। आपको भी अगर इनवाइट कर लेते तो कारकुनों का फिर क्या करना था। नहीं, वैसे बचत के मामले में शेख साहब ने कमाल कर दी है। 3 गैर मुल्की दौरे किए हैं और 13 मुल्की दौरे किए हैं, और सारे के सारे ट्रेन पर। जी बिल्कुल, आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि पहले वज़रा जो आते रहे हैं रेलवे के, वो अंदरूनी दौरे तो करते रहे हैं रेलगाड़ी पे, बैरून मुल्क कोई रेल पे नहीं गया। मैंने जुनैद साहब गैर मुल्की दौरे भी इसलिए किए ट्रेन पे कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जमीन पे पड़ी हुई है। अजी मैं गोगे दी थैली नहीं डिगी होंगी ना, नीवा हो गए तो वो चुकी जाती है, ना बेचारा छट के जाता है। बिल्कुल मईशत की यही हालत है। गैर मुल्की दौरे में ट्रेन पे जुनैद साहब यहाँ कराची से चले हैं ट्रेन पे, पिशावर पहुंचे हैं, मैं इंजन में चला गया हूँ, ड्राइवर के साथ बैठ गया हूँ। मैंने कहा काका घबराना नहीं, चल गिलगित की तरफ डाल। ले गए आगे, पहाड़ आ गए। कहते नहीं पहाड़ कैसे चढ़ेंगे जनाब, क्या कर रहे हैं? मैं कहा मुझे ना समझाओ, मैं बड़ी दफा रेलवे का वजीर रह चुका हूँ, मेरी को पहली बारी नहीं है। दूसरे गेयर में डालो ना तो कलाचा दा नाप के रख दे, रेस दे टका के, तू नहीं चढ़ेगी पहाड़ पे। अच्छा जुनैद साहब, अगर ट्रेन पहाड़ पे नहीं चढ़नी तो तब्दीली किस बात की हमने? गिलगित क्रॉस किया और चाइना घुस गए। नहीं शेख साहब, पहाड़ चढ़ तो लिया आपने, तो फिर उतराई? जुनैद साहब, उतराई में ही तो बचत हुई है पाकिस्तान। अच्छा। मैंने ड्राइवर से कहा उतराई शुरू हो गई है, इंजन बंद कर और गेयर से निकाल दे गाड़ी। बंद गाड़ी सीधा चीन में घुस गए। देखिए, बात ये है कि अगर तो आपने मुल्क की मईशत को ऊपर लेके जाना तो गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। गाड़ी बंद करनी, इतनी सारी बात। जा बंद कर रहे हैं अपनी गड्डी बात। और लोग अब चीखना शुरू हो गए हैं कि गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। हाँ जी। और देखें, मैं ये समझता हूं कि आपको इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए कुछ भी करना पड़े, आप कर गुजरें। बिल्कुल शेख साहब, कर गुजरे। नहीं पुत्र, तू अपने रिस्क ते कर गुजरे। मैं तेरी गल नहीं की थी, मैं पाकिस्तान रेलवे की गल। ये ना हो कि ये कुछ करे और गुजर जाए। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आप जैसी चीज रेलगाड़ी में सिर्फ एक ही होती है, जिसको खींचे तो गाड़ी खड़ी हो जाए, और वो कर गुजरे तो जुर्माना हो जाता है। शेख साहब, ये आपने पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने रेलवे के इंजनों की खरीदारी पे बड़ा कमीशन खाया है,
तो आया इतना बड़ा आपने इल्जाम लगाया उन पर, आपके पास सबूत है कोई? देखें थैला साहब, पहली बात तो ये है कि आज तक शेख रशीद ने बगैर सबूत के कभी कोई काम नहीं किया। सबूत होते हैं तो फिर मैं जनाब कदम उठाता हूँ। यकीन मानेंगे आप, रमजान का महीना जा रहा है, मैं तो रोजा भी बगैर सबूत के नहीं खोलता। क्या मतलब? जुनैद साहब, बच्चा आके कहता है कि घुघू आज गया, मैं कहता नहीं भाई, इस तरह नहीं, सारे दिन का रोजा रखा हुआ है, इतनी जल्दी ना करो। बाहर निकलता हूँ, खुद जाके घुघू की आवाज सुनता हूँ, उससे भी तसल्ली नहीं होती। फिर अजान की आवाज आती है, उस पे फिर तसल्ली होती है, फिर रोजा खोलता। एक दो दफा बच्चे ने कहा भी है, शेख साहब खोल लो, मकरू हो जाता है। मैं कहती बगैर सबूत के नहीं, अजान सुन के फिर रोजा। तो सबूत इंशाल्लाह दिखाएंगे और सारे जमाने के सामने दिखाएंगे। जब वक्त आएगा जरूर दिखाएंगे सबूत। वाह वाह वाह, क्या बात है। पाकिस्तान की सियासत ने सानू कितना सोहना सियासतदान दिता है। ये सर जी किसी ने दिते नहीं, आप ही धक्के ना पड़ गए ने। देखें गौरी साहब, जिसने आना होता है वो आ जाता है। वो क्या कहते हैं कि सूरज जब उबर रहा होता है तो उसे कोई दबा नहीं सकता। मैं इन सियासतदानों की तरह नहीं हूँ जिनकी अब सियासत सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गई है कि लंदन जाने दो, लंदन जाने। और मैं अल्लाह के फजल से किसी की गोद में बैठ के नहीं आया। शेख साहब ये भी वजाहत कर दें कि कंधों पे बैठ के भी नहीं आया। आप यकीन माने, मैंने कॉलेज के जो पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उसी में मुझे मेरे दोस्तों ने कंधों पे उठा लिया। शेख साहब, आपने कुछ जोरदार तकरीर की होगी, तब स्टूडेंट ने आपको कंधों पे उठाया होगा। जाहिर है गौरी, तकरीर की थी तो उन्होंने कंधों पे उठाया, और को मैंने 60 नहीं सी लग गई। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, जानवर पालने का शौक तो अब हर दूसरे बंदे को नजर आता है। दूसरे नहीं तो चलो तीसरे को, तीसरों नहीं तो चौथे को, अगर गोगे जैसा हो तो दूसरे को ही, तो अगर पतले पतले हो तो चलो चौथे पांचवें। मगर ये बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है मुझे मिली कि अपने पालतू जानवरों के नाम दुनिया में कई लोगों ने अपनी अरबों रुपए की जायदाद की हुई है जी। ये देखो क्या खबत है। हाँ हाँ हाँ, कई पालतू जानवरों के नाम ऐसी ऐसी जायदाद की हुई है उनके मालिकों ने कि हैरान कुन। वो जैसे गौरी पूछता होता है ना कि ये 50-50 वाले कितने नोट हो, वो पूछना पड़ जाता है। इसमें 90% कुत्ते बिल्लियां शामिल हैं पालतू। हाँ जी, जाहिर है। कुत्ता बिल्ली ऐसा जानवर है ना जी जो आके करीब बैठ जाता है, और वो वैसे भी अपने पैसों का हिसाब किताब भी रख लेता है। हाँ जी, कुत्ता तो जाके बैंक से साइन भी कर लेता है। उस कुत्ते ने कोई बट्टा भी नहीं मारा। भूल जाती है, बिल्ली ने जरब देनी नहीं होती। जिथे जरब देने वाला काम होवे ना, उसे बिल्ली बेचारी फिर रहती है, इसलिए जरा उसको फिर साथ एक बंदा चाहिए होता है। अगर सर ये जो कुत्ते ने कोई बट्टा भी नहीं मारता हो यार, पति कुत्ता ही। ऐसे कुत्ते ने तुम जैसे को वट्टे मारने के लिए 500 बंदा रखा अच्छा, मैं आपको इस हवाले से एक बड़ी अजीब सी सुनाने लगा हूँ स्टोरी। ये अमीर तरीन जानवरों में पहले नंबर पे जो आता है ना जी, वो जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता है। इस कुत्ते का नाम गंथर चहारम है। 375 मिलियन डॉलर इसकी जायदाद। अब बताओ, इस गंथर को पंथर मार सकते हो? 375 मिलियन डॉलर। और आपको ये सुन के हंसी आएगी, ये गंथर चहारम जो है, इसको ये जायदाद अपने वालिद साहब की तरफ से मुंतकल हुई है, विरासत में मिली। इसका जो वालिद था ये एक अमीर कुत्ते का बेटा है। वो जो इसका बाप था उसका नाम था गंथर सोएम। जब वो मर गया तो फिर वो सारी जायदाद जो है वो ये उसका बेटा था, इसको मुंतकिल हो। ये जर्मनी का एक शख्स था, कार्लूटा। जी हाँ, जर्मन था वो। उसके पास था ये गंथर सोएम। ये कार्लूटा ने किसी का घर लूटा था तो उसने इसको दे दिया कुत्ते को। यार तो मैं उसको मजाक कर रहे हो, ये अरबपति कुत्ता तुम्हारे सामने आके बहू करे तो तुम्हारे सांस हो जाए। ये कोई मलमूली कुत्ता फैमिली नहीं हुई, आम गोश्त हड्डियां नहीं थे ये खाते। इनका मालिक इनको चाका दे के खिलाता था। बिल गेट्स ने खाने में से जो हड्डियां छोड़ी है ना, ये वो है। ये जो गंथर नामी कुत्ता है ना, इसका पर्सनल कुक है
اس کی پرسنل گاڑی ہے, اس کا پرسنل شوفر ہے. بلے بلے بلے, یہ تو اپنے ڈرائیور کو چاڑتا بھی ہوگا کئی دفعہ. بہو 8:30 آئے بہو, حد ہو گئی ہے. میں اپنے ایک دوست راٹ وائلر وال جانا سی, بہو بہو. ڈرائیور کہتا ہوگا جی صاحب لعنت ہے آپ کے ارب پتی ہونے پہ, جو آپ نہیں ملنے جانا ہے وہ نہیں آپ کو ملنے آ سکتا. کہا تھا ڈرائیور نے ایک دفعہ, پھر اس نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا کہ اس کی جو چھوٹی کتوری ہے نا, اس کے ساتھ میری شادی کی بات چل رہی ہے. پھر ڈرائیور نے کہا سر ادھر نہ جائیں, سسرحال کے گھر کہتے ہیں جوائی کتا. کہا نا ڈرائیور نے, پھر اگو ہی نہیں آکھیا کہنا پیکیاں رہا کہ میں کیڑا چیتا لگن. یہ بھی کتا ہی ہے. ویسے ہی مان سے میں سوچتا ہوں کہ یہ جرمنی میں ہے بیچارہ, اس لیے اس کی موجیں لگی ہیں. اتنے پاکستان چ کدھر ہوندا ہے روز یہ محلے دے منڈیاں نے روڑے مارنے اور پھر جا کے آپس سے گلاں کرنی ہے. بڑا بن دئی عرب پتی ایڈی ہٹ ماری اج چوں چوں کردا نسی. ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ. لا جی دوسرے نمبر پہ جو امیر ترین جانور ہے وہ کیٹ ہے, گرمپی کیٹ. جی بلی ہے ایک, گرمپی اس کا نام ہے. اچھا, اس کی جائیداد $100 ملین ہے. جی $100 ملین اس بلی کی جائیداد ہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ اپنے ایکسپریشن کی وجہ سے بڑی ہٹ ہے. ہاں جی ہاں جی, اس کی جو فوٹو سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے نا, وہ بڑے غصے والے تاثرات ہیں اور باقاعدہ اس میں بڑی جگتیں ہو رہی ہیں. لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ تکبری ہے جی. دیکھو نہیں ذرا کہے نہ لاس کی گالی نہیں کرتے. تیسرا امیر ترین جانور جو ہے وہ بھی ایک بلی ہے. اس کی مالیت جو ہے جائیداد کی وہ $97 ملین ہے, $97 ملین. ٹیلر سوئفٹ کی یہ جو بلی ہے یہ اشتہارات میں ماڈلنگ بھی کرتی ہے. جی ہاں, ایک باقاعدہ سیلیبریٹی ہے. میں سوچتا ہوں پاکستان چوندی تھے انہیں بھی نیب چ پھنسے ہونا. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ میں یہ 100 والے نوٹ گن رہی ہے بلی. وہ اشتہار چ نہیں گن رہی, اور سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے ایجنسیاں نو. وہ ہونے تے منی لانڈرنگ دا کیس بنان لگے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی پتہ کی بات یہ ہے کہ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, دونوں روشنی میں ساتھ دیتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.